Good morning, everyone. We will start our class with a discussion on the overall nature of this particular article, which is written by Pulapare Balakrishnan. Professor Balakrishnan teaches at Ashoka University now. And in this reading, as I told you previously, this reading discusses about the era between 1950 to 1964. So that is called as the Nehruvian period. उसको हम Nehruvian period बोलते हैं because Nehru ji was the prime minister. Apart from that, when we are going to talk about this particular growth model, the growth model is called Nehru Mahalanobis model. P.C. Mahalanobis was the founder of Indian Statistical Institute in India, and he's also known as the father of statistics in India. So इन दोनों का ग्रोथ प्लान जो था, जो ग्रोथ मॉडल था, वो इंडिया ने अडॉप्ट किया. एंड दैट ग्रोथ मॉडल विच इंडिया अडॉप्टेड वाज इन द ईयर, इन्होंने जो ग्रोथ मॉडल दिया था वो अडॉप्ट हुआ था इन आवर ओवरऑल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाला प्रोसेस इन द सेकेंड 5-year plan. So second 5-year plan, you will see the growth model of Nehru and Mahalanobis being operated in India. Now, while I do that, so I've also sent you the reading, guys. So go through the reading. It's already marked. The entire reading is marked, so you don't have to worry about the parts that you need to focus on or not. Okay, that part I've already taken care of. Just a second. So simultaneously, please open your readings as well if you have it on your other system or whatever is the case in your this thing. Now, so this, as I told you, this particular reading talks about the years of 1950 to 1964, and especially the Nehru Mahalanobis model. This model was essentially based on the Soviet system as well. So Soviet system had a similar kind of a model. We had discussed about the overall growth, and we are going to talk about this particular period. इसके बारे में हमने last class में बात करी थी. And as I told you that we will be talking about 4 major issues with respect to the growth, and we had already talked about the Nehruvian era in terms of how this Nehru was a champion of Fabian socialism, because जिस भी कंट्री में वर्ल्ड में सोशलिज्म आया वहाँ पर वायलेंस जरूर आया, but the kind of socialism that we adopted in our country was in a very democratic manner, in a very discussed manner. तो वो हमारा एक यूनिक पॉइंट था, where we had a mixed economy as well. So it was not complete hardcore socialism. We had also created space for the private sector. Now let's start our reading. Now in terms of growth model, guys, अगर हम ग्रोथ मॉडल के बारे में बात करें तो ये जो नेहरू महालनोबिस मॉडल था, एक्चुअली में इंडिया का जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल प्लान है वो 1948 का इंडस्ट्रियल प्लान है, जिसमें पूरा मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल डिस्कस्ड है. बट 1956 के अंदर we adopted in our planning, we adopted this Nehru Mahalanobis plan or Nehru Mahalanobis model. Now what was this model all about? This model was typically like a Harrod-Omar model. आप लोगों ने Harrod-Omar model, I'm sure you must have studied Harrod-Omar model in your classes as well. तो guys, Harrod-Omar model का essence क्या है? Can anyone tell me what is the essence of Harrod-Omar model? ये डायग्राम आपने नहीं देखा होगा, but anyone can tell me essence of Harrod-Omar? So it's a relation model which necessarily suggests that the rate of economic growth depends on the level of savings and the capital output ratio. Exactly. So basically it is S by K. Your if you see this, so if you see the model, it says the rate of growth. So the rate of growth is nothing but S by K. Okay, this S is basically savings and this K is basically capital output ratio. ठीक है, ये बेसिकली आपको इन अ सेंस ये आपको ग्रोथ रेट भी बताता है, आपको पोटेंशियल
ग्रोथ रेट भी बताता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेचुरल ग्रोथ रेट ऑल्सो, विच इज बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रोथ रेट दैट यू कैन अचीव डिपेंडिंग ऑन योर पॉपुलेशन इंक्रीज एंड योर प्रोडक्ट लेबर प्रोडक्टिविटी. ये आउटर लिमिट सेट करता है. ज़रूरी नहीं है कि ये सारे इक्वल हों. there's समथिंग कॉल्ड अ नाइफ एज प्रॉब्लम जो शायद से डिस्कस ना हुई हो. ग्रोथ रेट, एक्चुअल ग्रोथ रेट इज इक्वल टू वारंटेड ग्रोथ रेट इज इक्वल टू नेचुरल ग्रोथ रेट. ठीक है. टिपिकली वी टीच दिस टॉपिक इन ड्यूरिंग सिविल्स, एंड हमें सिविल्स के टाइम पे पूरा टॉपिक नाइफ एज इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना पड़ता है. तो अगर ये जो आप लोगों ने पढ़ा होगा वो ये होगा कि अगर ये इक्वल ना हो तो ये स्पायरलिंग या तो इन्फ्लेशन होगा या स्पायरलिंग डिफ्लेशन होगा. ठीक है. सो टू ड्रॉ फ्रॉम दैट बेसिकली अगर हम उसी को देखें तो ये डायग्राम भी सिमिलर चीज कह रहा है, जिसका बेसिकली मतलब है कि हमें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को मैच करना है. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, सो इफ यू सी गाइस, यहाँ पर क्या है, यहाँ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट है. यहाँ पर आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एंड ऑन दिस प्लेन वी हैव, ऑन दिस प्लेन ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट आ गया, एंड यहाँ पर ये आपका सेविंग्स का फंक्शन है, ये आपका इन्वेस्टमेंट का फंक्शन है. तो जब भी आपका ये मैच होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट जब मैच होंगी तो आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा. तो बेसिकली बोल रहा है कि आपने यहाँ से शुरू किया, आप ये आप इस पेस पे आपकी इन्वेस्टमेंट शुरू हुई और वो जब सेविंग से मिली तो ये आपकी ग्रोथ रेट होनी चाहिए थी. तो जो वारंटेड ग्रोथ रेट जो होती है उसको हम बोलते हैं कि KL/OL इज योर वारंटेड ग्रोथ रेट. इतनी आपकी ग्रोथ रेट हो जानी चाहिए. But ultimately, the essence that you should take out from this, I'm not explaining you Harrod's model in detail, but what I'm trying to tell you is that everything in the economy depends on how you move your investment. तो जैसे आप अपना investment increase करोगे, this is your investment function. The essence what you need to get is, as you increase your investment, the level of income in the economy or the GDP level increases. So the essence of the entire model was, how do we increase the investment in the country and where do we put this investment? इसको allocate कहाँ करना चाहिए हमें? So when they were discussing this, तो उनके पास बहुत सारे options थे कि अच्छा हम कहाँ इसको लगा सकते हैं. तो what this model talked about is that we should perhaps invest in heavy industries. And when you talk about कि आप कह रहे हो कि हम पहली बात तो ये heavy industries क्या हैं, तो यहाँ पर ये मॉडल बताता है that heavy industries are those industries where the input output ratio or backward or forward linkages are the most. Now let us understand this backward and forward linkages. ये backward and forward linkages क्या है, and on the basis of these backward and forward linkages how does they justify कि हम एक unbalanced growth strategy करेंगे. So इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने अपने सेकेंड 5-year प्लान ऑनवर्ड्स कुछ इंडस्ट्रीज आइडेंटिफाई करी. इंडस्ट्रीज कैसे आइडेंटिफाई करी? कोल, आयरन एंड स्टील, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, केमिकल्स. दीज टिपिकली आर इंडस्ट्रीज जिनका इनपुट आउटपुट रेशो जो होता है बहुत हाई होता है. इनपुट आउटपुट रेशो इज वेरी हाई. नाउ द गुड थिंग अबाउट हैविंग अ वेरी हाई इनपुट आउटपुट रेशो इज कि जब आप आयरन एंड स्टील बना रहे हो, सपोज आपने एक आयरन की फैक्ट्री सेटअप कर दी, एंड इफ यू रिमेंबर हिस्ट्री देन यू वुड नो दैट इस एरा में हमने बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स करे हैं. फॉर एग्जांपल राउरकेला, भिलाई, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज के साथ मिलके, जर्मनी के साथ एंड रशिया के साथ, यूके के साथ मिलके हमने बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट सेटअप करे, एल्यूमिनियम प्लांट सेटअप करे. तो इसका क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री खोलनी है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हमें आयरन ओर चाहिए होगा, ठीक है, इसके लिए हमें कोल चाहिए होगा, इसके लिए हमें लाइमस्टोन चाहिए होगा. एंड बिकॉज इट्स अ वेरी हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल ही हैवी है, तो आपको रेलवे स्ट्रॉन्ग चाहिए होंगी, क्योंकि रोड से सब कुछ नहीं ट्रांसफर हो सकता, आपको बाकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करना पड़ेगा. सो बाय सेटिंग अप वन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
it gives impetus to so many input industries. And further, जो इनका आउटपुट है आयरन एंड स्टील, इट गोज टू अ वेरी ह्यूज लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल आपका एरोनॉटिकल इंडस्ट्री में चला जाएगा, एयर स्पेस वगैरह, डिफेंस में चला जाएगा, रेलवेज में चला जाएगा, मशीन्स में चला जाएगा. ठीक है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में आयरन एंड स्टील चाहिए होता है. कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज में चला जाएगा. सो आपने वो इंडस्ट्रीज पिकअप करी जिनका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग. ये पॉइंट समझ में आया गाइस? हैविंग स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज. व्हाई डिड वी पिक दीज इंडस्ट्रीज? So can you please repeat this again? So the essence of this strategy was that, see, we were a poor economy. ठीक है, a poor economy has limited investment options. So if you have limited investment options, then you would have to make a choice of what kind of industry that you would like to pick. ठीक है, suppose तुम्हारे पास take a case कि you are from a middle class family, आपके पास क्या कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजुकेशन के आपके पास कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स हैं, तो आप उस अमाउंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो कि इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊं जो मुझे बेस्ट एजुकेशन मिले एंड मुझे बेस्ट आगे करियर मिल जाए. ठीक है, सो सिमिलर एस्पेक्ट में यू नीड टू सी कि एक डेवलपिंग कंट्री जो है अपना पैसा जो है, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ करेगा. So it's kind of this decision is kind of a policy decision to maximize return. Policy decision to maximize return on investment. It's something similar to what I say that अगर किसी का IIM अहमदाबाद या ISB में हो रहा है और FMS में हो रहा है, तो probably FMS के अंदर आपको ROI ज़्यादा मिलेगा क्योंकि उसकी फीस ही कुछ नहीं है. ठीक है, as compared to an IIM. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में बात हो रही है एंड विद लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स. तो we are a developing country in 1950s. We have limited amount of funds. We now need to, our aim is to increase our income, increase our GDP. So how do we do that? एक तो ये है कि एक होती है balanced growth strategy, कि आप सारे सेक्टर में उठा के equal amount आप डालना शुरू कर दो. You will read about this balanced and unbalanced growth strategy by Hirschman and Knox as well later on. तो दूसरी होती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी, जिसमें आप कह रहे हो कि आप कुछ सेक्टर्स को फेवरेट पिकअप करोगे और कहोगे कि हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे. तो हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी. हमने कुछ विनर्स पिक करे. हमने वो विनर्स कौन से पिक करे? हमने ये इंडस्ट्रीज पिकअप करी कि बस हमारी ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं ये अच्छा आउटपुट हमें दे सकती हैं. ये अच्छा आउटपुट क्यों देंगी हमें ये सारी इंडस्ट्रीज? ये अच्छा आउटपुट इसलिए देंगी क्योंकि इनका इनपुट एंड आउटपुट रेशो जो है वो बहुत अच्छा है इन सारी इंडस्ट्रीज का. एंड व्हाट डू वी मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट रेशो? इट बेसिकली मीन्स कि इनका बैकवर्ड लिंकेज, इसको बोलते हैं बैकवर्ड लिंकेज, एंड फॉरवर्ड लिंकेज इज वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज स्ट्रॉन्ग होने का मतलब कि उस इंडस्ट्रीज की वजह से उसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, इसलिए ये सारी इंडस्ट्रीज पिकअप कर जाएंगे. एंड इनका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है, इसलिए वो वाली इंडस्ट्रीज भी पिकअप कर जाएंगे. एग्रीकल्चर इज वन ऑफ देम. आयरन एंड स्टील एग्रीकल्चर में भी जाता है. सो दिस इज व्हाई वी पिक्ड अप certain sectors and we said that we will invest heavily in these sectors and all of them were heavy industries. ठीक है, and a typical heavy industry जो आपको मैंने बताया कि iron and steel हो गया, chemicals हो गया, coal हो गया. And do remember this is something that you will learn in geography as well, economic geography and later on in civils as well. जो भी कोई heavy industry होगी वो industry हमेशा raw material के पास setup होगी. Can you guess why? Can you guess why, guys? Where are all the iron and steel industries set up in India? Exactly. तो आपको सारी की सारी इतना बड़ा आयरन, इतनी बड़ी चीजें जो हैं रॉ मटेरियल आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो. तो यू विल फाइंड आउट ऑल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर नियर बाय योर वेयर आयरन इज माइंड एंड इंसिडेंटली वहीं पे आसपास आपको कोल भी मिल जाता है. ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, देन यू विल गेट उड़ीसा. तो ये सारे एरियाज में आपको कोल भी मिल जाता है इन द विसिनिटी एंड इस विसिनिटी में आपको आयरन ओर भी मिल जाता है. So that is one of the reasons. Then
कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो फुट लूज होती हैं, जो कहीं भी आप सेटअप कर सकते हो, और कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत डेलिकेट होती है, जो आपको मार्केट के पास ही सेटअप करनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल ग्लास की जो इंडस्ट्री वो आपको मार्केट के पास ही सेटअप करनी पड़ेगी. कैन यू गिव मी अ रीजन व्हाई समथिंग लाइक ग्लास इंडस्ट्री? Because there will be loss if glass breaks. Yes, exactly. Exactly. Any perishable item, anything that involves breakage, आप उसको मार्केट के पास लाने की कोशिश करोगे, so that आपका ये वाला जो वो है लॉस है वो मिनिमाइज हो जाए. तो इसी इन कंसेप्ट्स को वी स्टडी इन इकोनॉमिक ज्योग्राफी एज वेल. व्हेनेवर मोस्ट ऑफ यू as I know that will be appearing for civils, so I just wanted to give you that input as well. Now, given this background कि हमने ये इस तरीके की हमने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई, let us see that what was exactly the model. So as I told you, this was the model which we adopted in our second 5-year plan onwards. So when I say second 5-year plan, essentially what I mean is कि second 5-year plan is 1956 onwards. So when I'm saying this, I mean 1956 onwards हमने ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. हमारा फर्स्ट 5-year plan is 1951 to 1956. सेकेंड 5-year plan is from 1956 to 61. ठीक है, फिर उसके बाद 61 to 66 वो थर्ड 5-year plan. तो ये जो सेकेंड 5-year plan हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया, वी सेड कि वी विल इन्वेस्ट हेवीली इन दीज हेवी इंडस्ट्रीज, एंड इट इज एसेंशियली बेस्ड ऑन हैरोडोमर मॉडल. और हमने प्लानिंग का कंसेप्ट लेके आए. नाउ गाइज, ये जो प्लानिंग का कंसेप्ट है, प्लान्ड इकोनॉमी, ये जो प्लानिंग का कंसेप्ट है, ये वी टुक इट फ्रॉम सोवियत यूनियन. ठीक है, सोवियत से हमने ये प्लान का कंसेप्ट, and this model of heavy industrialization and the overall Mahalanobis model that was there, it was very close to one of the models in USSR which was called as Feldman's model. उससे काफी resemble करता था. And as I told you, it's essentially an unbalanced growth strategy. Why is it an unbalanced growth strategy? Because you are saying that you're going to pick certain winners on the basis of certain parameters, and you're going to invest more in them. And investment, as I told you, investment in key sectors, this laid the foundation of our industrialization and growth with planning, because you had this planning commission which had come up, and every 5 years you had these plans made where you decided that what are you going to do in the next 5 years. Let's talk about the strategy, what they had. Essentially वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, हैरोडोमार की जो स्ट्रैटेजी जो हमने अभी यहाँ बताई कि आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहो. गाइज, एनीवन नोज हाउ टू गेट रिड ऑफ द टास्क बार? प्लीज आई कैन वर्क नाउ. So when we talk about this, so we are talking about the planning portion, and the planning portion is basically, again, we are taking it from USSR. and ये जो हम बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपकी जीडीपी बढ़ती रहेगी. ठीक है, एंड रिमेंबर गाइज, what is one of the major deficiencies of this Harrod-Domar model? If you remember Solow's model, you can probably answer that. Anyone remembers? क्या एक major issue था Harrod-Domar model का? So it was based on unrealistic assumptions. One of the assumptions was that आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहो, आपकी जीडीपी इंक्रीज होती रहेगी. ठीक है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चल रहा है. इफ यू रिमेंबर योर मॉडल ऑफ सोलो लुक समथिंग लाइक दिस. याद है, इस तरीके से आपका ये सेविंग्स फंक्शन होता था, और दिस सेविंग्स इनटू वाई फंक्शन होता था, एंड देन यू हैड दिस, एंड यहाँ पर आपका गोल्डन इस तरीके से आपका ग्रोथ रेट आता था. ठीक है, तो यहाँ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात होती है, जो पहले नहीं, जो आपका हैरोडोमार के अंदर बात नहीं हो रही थी. सो that's the major difference between one of the major differences between these two models. So ये एक issue आया, and then उसके बाद when we go to study this particular model, we see that the essential strategy here was that to increase the investment increase होगी तो national income increase होगी तो per capita income increase होगी, और per capita income increase होगी तो poverty reduction होगा.
This is called as the trickle down strategy. Do remember this, guys. ये कई बार पूछा जाता है, and you should know it as an economic student that our initial policy of poverty reduction was not a direct attack on poverty, but was an indirect attack on poverty through increasing the overall pie of the GDP. उसको हम बोलते हैं ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी. Whereas 70s onwards and especially 80s onwards you started directly attacking poverty, and 2004 के बाद when we'll study the readings of inequality and poverty, we will see that 2004 onwards 2005 onwards हमारा जो policies रही हैं towards tackling poverty has been right based approach. For example, you have right to food now, you have right to work now, you have right to education now. तो अब आपके पास right आ गया है कि यार मैं गरीब नहीं रहना चाहता, और अगर मैं गरीब हूं तो मेरे पास कुछ rights हैं. मेरे पास right to food है, सरकार को मुझे 5 किलो खाना देना ही पड़ेगा पर पर्सन पर फैमिली, ठीक है. और अगर मैं गरीब हूं, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, तो सरकार का काम है कि मैं नौकरी के लिए अगर अप्लाई कर रहा हूं तो मुझे एनआरईजी में नौकरी दे, ठीक है. अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मेरे बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है. तो नाउ अब टेबल्स हैव रिवर्स. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ राइट ऑफ अ सिटीजन टू हैव दीज थिंग्स, वेयर एज यहां पर कहीं पर भी राइट के बारे में बात नहीं हुई. इट वॉज काइंड ऑफ अ पैटर्नलिस्टिक स्टेट, which is saying that, oh, these are my subjects, I am going to get rid of poverty for them. You cannot ask the government to, as a matter of right, to that. Today, if the government is not able to provide you what is given in those acts, then you can take the government to the court. यहाँ पर आप कहीं पर भी सरकार को कोर्ट पे नहीं ले जा सकते थे. आज की डेट में अगर सरकार वायलेशन करेगा तो आप सरकार को कोर्ट में ले जाओ, क्योंकि अब एक पॉजिटिव राइट बन गया है आपका कि मुझे ये सारी चीजें मिलनी ही चाहिए. सो initially our strategy of poverty reduction was based on trickle down, which is famously said as increasing the pie or increasing the size of the cake so that the size of the pie also increases. कि आपने ओवरऑल जीडीपी इंक्रीज कर दी तो कुछ ना कुछ इनकम, अगर ओवरऑल ये इंक्रीज हो गया तो कुछ ना कुछ इनकम तो नीचे भी चली जाएगी. That's essentially the trickle down strategy. Now ये जो मॉडल बनाया था नेहरू महालनोबिस ने, नाउ रिमेंबर गाइज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मॉडल एंड द प्लान. मॉडल जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडल था, एंड जो प्लान जो था वो पूरी कंट्री का था फॉर ऑल सेक्टर्स. व्हाट एक्चुअली हैपेंस एंड व्हाट इज बीइंग आर्ग्यूड बाय पुलापरे बालकृष्ण इज, लोग क्या करते हैं, लोग मॉडल को देखते हैं और कहते हैं कि यार इस मॉडल के अंदर तो एग्रीकल्चर की बात नहीं है, इस मॉडल के अंदर बाकी चीजों की बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं है, और फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आपने ये वाला मॉडल अडॉप्ट कर लिया. बट व्हाट दे फेल टू रिकॉग्नाइज इज दैट इफ दिस इज द प्लान, मॉडल इज अ पोर्शन ऑफ द प्लान. प्लान हैड अदर थिंग्स एज वेल. प्लान में एग्रीकल्चर की भी बात है, पीएससीज की भी बात है, एम्प्लॉयमेंट की भी बात है, ठीक है, बीओपी की भी बात है. तो बहुत सारी प्लान के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं. मॉडल जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे मेजरली फिक्सेटेड है. सो एंड दिस मॉडल वाज अ 2-sector मॉडल, विच 2 sectors कौन से हैं, एक कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स. बेसिकली कैपिटल गुड्स कौन से हैं? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर कंजम्पशन एंड कैपिटल गुड्स. Can you, on the basis of this, can you give me an example of a capital good? Basically, I'm telling you कि capital goods वो हैं जिसके basis पे बाकी capital goods या consumption goods बनते हैं, ठीक है. Can you give me an example of a capital good? Machine, fabric, iron and steel. Exactly, iron and steel, guys, इससे अच्छा example हो ही नहीं सकता. आप स्टील अपने आप में भी एक प्रोडक्ट है, ठीक है, बट वो आप उसको एज इट इज स्टील को आप कंज्यूम कर लो, ठीक है, सॉरी कंजम्पशन में नहीं, उसको एज अ कैपिटल गुड यूज कर लो, और स्टील को यूज करके आप क्या बना सकते हो, स्टील को यूज करके आप फ्रिज बना सकते हो, गीजर बना सकते हो, ठीक है, तो प्लेन बना सकते हो. प्लेन तो खैर अगेन
कंजम्पशन का तो खैर वो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ बोथ वेज, बट ये जो कंजम्पशन वाली गुड्स वाली आइटम है वो आयरन एंड स्टील से बनती हैं और कैपिटल गुड्स बना सकते हो उससे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने स्टील से आपने मशीन्स बना दी, एज समवन सेड मशीन्स, तो मशीन्स जो बन गई वो तो कैपिटल गुड है, और फ्रिज फॉर एग्जांपल बना तो वो कंज्यूमर गुड है। सो कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एंड अब आपके पास प्रॉब्लम ये है इस पूरे मॉडल के अंदर, आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे हैं। जब आपके पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसे हैं तो आप ये सोचना चाहते हो कि यार मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं कि कैपिटल गुड्स बनाऊं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज इज, अगर मैं आपको ये डिलेमा में डाल दूं कि आप 1950s में हो एज एन इकोनॉमिस्ट और आपसे पूछा जा रहा है कि हम कैपिटल गुड्स में डालें, हमारे पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, दिस इज सिंपली एन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, 100 रुपए आपके पास पड़े हैं, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स में, व्हाट वुड यू चूज? मोर इन कैपिटल गुड्स, मानवी सेज मोर इन कैपिटल गुड्स, एनीवन एल्स? अगर आप कंज्यूमर गुड्स में करोगे तो क्या होगा? कंज्यूमर गुड्स अगर में इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा? कैन समवन थिंक? एकदम से आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी, यही होगा ना। अगर आप कंज्यूमर गुड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आप इन्वेस्ट किया और आपने ये बना दिए तो एकदम से लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन एकदम से बढ़ गई तो उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है? जीडीपी बढ़ जाएगी, यही होता है ना। योर जीडीपी इज व्हाट? C प्लस आई प्लस G प्लस NX। तो आप कह रहे हो कि अगर आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे तो वो लोग खरीदेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। बट अगर आप कंज्यूमर गुड्स नहीं बनाओगे तो लोगों की कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ेगी, तो ओवरऑल जीडीपी नहीं बढ़ेगा। सो स्टिल व्हाई वुड यू स्टिल इन्वेस्ट मोर इन कैपिटल गुड्स? आइडिया गाइस? एग्जैक्टली नहीं। इट्स गाइस, इसको इस तरीके समझो, आपको सरकार कहती है ना कि आप 18 साल के बाद, इनफैक्ट 15 साल के बाद नौकरी कर सकते हो, तो आप 18 साल के बाद भी नौकरी कर सकते थे, बट आप एजुकेशन क्यों ले रहे हो? आप एजुकेशन इसलिए, और आपकी एजुकेशन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर खत्म नहीं होगी, यू विल ईदर गो फॉर एन MBA, यू विल गो फॉर अ मास्टर्स। वो इसलिए होगी क्योंकि यू नो दैट ये एजुकेशन सफिशिएंट नहीं है भाई मेरे लिए। तो दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू सैक्रिफाइस योर करंट इनकम। You could have earned 30,000-40,000 rupees right now, but you are sacrificing 30 to 40,000 rupees every month for 3 to 4 years. Why? Because you know that you have to invest this time in education so that your future path is much higher. You have to. This is the right time to skill yourself. Okay. Similarly, the country, the path that country took was involved sacrificing today's consumption for futures growth. आपको अपनी करंट आउटपुट को छोड़ के आपको फ्यूचर आउटपुट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार इनेबल हो गए कैपिटल गुड्स तो उसके बाद आप आगे जाके सारे तरीके के गुड्स बना सकते हो। So that was the strategy that the government of India and the Indian economists or the Indian planning establishment took, whereby it focused more on capital goods in the initial years as compared to consumer goods. So that is the planner's dilemma. Now, as I told you, there is a distinction between model, ये strategy या model versus the plan frame. ये हमेशा याद रखना, plan जो है एक बड़ा वो है, एंड जो मॉडल है उसका छोटा सबसेट है। हाउएवर ऑल्सो जो मॉडल है उसके अंदर कहीं पे इन्फ्लेशन, BOP, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहीं कोई बात नहीं कर रखी, बट लोग कहते हैं कि यार इस मॉडल के अंदर ये सारी चीजें तो है ही नहीं, बट देन पीपल डू नॉट सी दैट दिस मॉडल वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द प्लान, एंड व्हेन यू सी द प्लान यू विल फाइंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड देयर। नाउ लेट्स स्विच टू द रीडिंग गाइस। Let's switch to the reading and go through the reading as well. Now if you see this guys, ये देखो, यहाँ पर हमने ये इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी सारी। If you see this Nehru-Malinowitz strategy, this was the strategy where we were talking about that how to increase the level of income via industrialization, and there were two sectors that it talked about. Here आपके दो sectors,
capital goods and consumer goods, and one of the problems was not subjecting it to diminishing returns, जो basically आपके Harrod-Omar model में भी बोलता है. And what is the planner's dilemma? The planner's dilemma is to how to allocate resources to capital goods sector versus the consumer goods sector. What was the heavy goods? Heavy goods basically building machine complexes which produces steel, fertilizer, electricity, transport equipment. ठीक है, इन सब के बारे में बात करी. And it said that to lower the short run so that long run के अंदर we can produce more number of goods. So the long run rate of growth resulting from Mahlanobis strategy of shifting investment allocation to heavy goods industries would be higher. As I told you, this model had been inspired from the Feldman's model. See, one of the issues is that Mahlanobis model had no unemployment, inflation, or balance of payment. But once again, it's important to separate out model from strategy, and most of these except perhaps inflation were addressed by Mahlanobis in his the writings of the second plan. तो basically planning के अंदर ये सारी चीजें already आ चुकी थी. Now, let's talk about the criticism of some of the criticisms of the Nehru-Mahlanobis plan and strategy, and where we will also talk about what was an alternative strategy that was available with the planning dispensation. ठीक है, तो ये हमने अभी तक ये समझा कि ये प्लान क्या था, ये प्लान क्यों था. ठीक है, and as I told you guys, if you see this, कि हमने इंडिपेंडेंट कंट्री के अंदर हमने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन का सोचा, and without compromising with what was happening in say रशिया से हमने अडॉप्ट किया, बट रशिया के अंदर जब ये हुआ ये सब तो जेनोसाइड्स हुए, देयर वाज समथिंग लाइक कॉल्ड गुलाग. ठीक है, जहाँ पर आप जो भी खड़ा होता है आपके ऑपोजिशन में उसको मार देते हो. तो हमने एक डेमोक्रेटिक तरीके से ये पूरा का पूरा सिस्टम लेके आए. जो फैब्रिक है हमारा सोशल फैब्रिक जो हमने उसको मेंटेन करके रखा, एंड ये डेमोक्रेटिक एथोस से हम सोशलिस्टिक वैल्यूज को अडॉप्ट करा हमने कंट्री के अंदर. ठीक है, which was a huge thing. The country could have easily given that this country is so diverse, it could have easily disintegrated into multiple countries. Balkanization जिसको हम बोलते हैं, it could have easily balkanized. Something like Yugoslavia. Now, have you heard of this country, guys? Yugoslavia, erstwhile Yugoslavia. किसी ने सुना? तो यूगोस्लाविया देखो कितनी सारी कंट्रीज में बढ़ गया, उसको बाल्कनाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो वैसे हमारा बाल्कनाइजेशन नहीं हुआ. तो हम स्टिल यूनाइटेड रहे. इनफैक्ट हम एक स्ट्रॉन्ग यूनियन बने डिस्पाइट द फैक्ट ऑफ आवर डिफरेंट कल्चर्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस सप्लाई साइड मॉडल, कि ये सप्लाई साइड मॉडल था और इसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी. वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दोज शॉर्टकमिंग्स एज वेल, एंड we will also study what is known as an alternative strategy that we could have took up, which is called as the wage good strategy, which was given by Vakil and Brahman. Okay, हम वो समझेंगे. यहाँ तक any doubts guys? नेहरू Mahlanobis strategy समझ में आया all of you? इसके अलावा guys, you will not find much text on Nehru and Mahlanobis. ठीक है, तो you need to, whenever for whatever exam that you're going to study, this is going to be one of your major sources to study 50 to 64 वाला period. Okay, you will not find many other texts for addressing this period. Now let's move forward to Diksha. Now I am going to explain the criticism. ये supply side के ऊपर अब हम criticism के बारे में बात करें. वो पूरा बात यहाँ पर आ जाएगा. Now one of the flaws of Nehru and Mahlanobis strategy was that it was essentially a supply side model. It had no considerations of possibility of a demand constraint. तो in a sense आपने ये चीज आपने पहले कहाँ पढ़ी होगी गाइस? मैक्रो में आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपने मैक्रो में ये चीज पढ़ी होगी. What does it remind you of? मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही यहीं से होती है गाइस. दो मेजर स्कूल्स मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या हैं गाइस? What are the two major schools? कौन गाइस? क्लासिकल एंड केनीजियन. और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इवॉल्व कैसे होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का एसेंशियल इवॉल्वमेंट जो एवोल्यूशन जो हुआ है वो
वो क्लासिक्स और उस क्लासिक्स की वजह से नहीं हुआ, वो एक्चुअली किनीजियंस की वजह से हुआ है, क्योंकि एक मेजर स्कूल ऑफ थॉट जो 200 साल से चल रहा था, आपने उसके अगेंस्ट कुछ पुट किया 1939 से 1933 के बीच में, जो कीन्स ने पुट आउट किया था, ठीक है. Till then, what was imagined was, and what was a part of a normal classical and then neoclassical theory as well, was that आपकी बॉस आपको सप्लाई में कोई, आपके डिमांड में कोई इशू नहीं आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है. डिमांड विल हैव नो कंस्ट्रेंट, वट एवर यू सप्लाई इन द मार्केट विल बी डिमांडेड. So there was no possibility of deficiency of demand. In the first time, yes, exactly, Say's law, that supply creates its own demand. ठीक है. तो यहाँ पर इस पूरे जो पूरा मॉडल है उसके अंदर हम कह रहे हैं मार्केट्स क्लियर कर रही हैं, परफेक्ट इंफॉर्मेशन है सबके पास, आप बस सप्लाई कर दो. लेबर मार्केट और लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई से आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट से आपका आउटपुट आ जाएगा, और आउटपुट जो भी बनेगा वो आपका डिमांड हो जाएगा. तो आप डिमांड की डेफिशिएंसी को आप कभी भी एड्रेस नहीं कर रहे थे. In 1929, for the first time, you found out that people have supplied sufficient amount of goods, but there is a glut in the economy. कि सप्लाई तो मार्केट में पड़ी हुई है बट डिमांड कोई नहीं कर रहा है. तो वहां से आपका कीन्स की थ्योरी शुरू होती है, वेयर ही सेज, उनकी कीन्स की थ्योरी की शुरुआत ही यहां से होती है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बीइंग एब्सोल्युटली फ्लैट. वेयर एज इफ यू सी, उससे पहले जो थ्योरी थी एग्रीगेट सप्लाई कर्व वाज, तो कीन्स की थ्योरी यहीं से शुरू होती है कि डिमांड की डेफिशिएंसी हो गई है बॉस हमारी इकोनॉमी के अंदर, डिमांड को बढ़ाओ. और धीरे धीरे फिर उसके बाद जब न्यू क्लासिकल सिंथेसिस होता है तो आप देखते हो कि ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व ऐसे करके फिर ऐसे करके ऐसे करके अल्टीमेटली जब सिंथेसिस होता है इन दोनों कीनीशियंस एंड क्लासिक्स का, तो आप इस तरीके से बनाते हो कि अच्छा डिप्रेशन के टाइम में हो सकता है आपका सप्लाई कर्व ऐसा हो, जब आप फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाओगे तो आपका सप्लाई कर्व ऐसा हो जाएगा, और ये इंटरमीडिएट रेंज है. तो ये बेसिक वो है. तो ये जो थ्योरी है, डजंट इट मोर साउंड लाइक अ क्लासिकल थ्योरी, जहां पर आपने कीन्स की जो दिक्कतें हैं उनको तो आपने सोचा ही नहीं कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो thereby it did not recognize that there could be a deficiency of demand. Now in a Soviet model it could be easily done. सोवियत मॉडल में क्या है कि जितना आप बोलोगे उतना डिमांड हो जाएगा. आप प्राइवेट सेक्टर को बोल सकते हो सोवियत मॉडल के अंदर कि बॉस तुम्हें यहां इन्वेस्ट करना है. इट्स अ कंप्लीट कमांड इकोनॉमी. सोवियत सिस्टम के साथ हमने मॉडल लिया, बट सोवियत सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई नहीं जाएगा, ठीक है. तो वहां पर कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल होता है इकोनॉमिक सेटिंग के अंदर, सोवियत सिस्टम के अंदर. सो इन सोवियत सिस्टम देयर इज कंप्लीट कमांड एंड कंट्रोल, ठीक है. 1-to-1 रिलेशन होता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, ठीक है. वहां पर इन्वेस्टमेंट कैन बी प्लान्ड. आपने कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे इस क्या कहते हैं सेक्टर में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइवेट सेक्टर मना कर दे कि नहीं यार मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा. वहां पर आप ये इन्फोर्स कर सकते हो कि हर एक सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कितनी सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगी. तो जो भी सेविंग्स हैं आप उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो 1-to-1 बेसिस के ऊपर, ठीक है. आप कह सकते हो कि भैया तुम प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, तुम जो भी आपके पास सेविंग्स आएगी उसको आप इन्वेस्ट करोगे, और कहां इन्वेस्ट करोगे ये भी आप बता सकते हो, एलोकेशन बता सकते हो. दिस इज पॉसिबल इन दी सोवियत सिस्टम. बट इन इंडिया वी वर अ मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल. हमारा वहां पर तो प्राइवेट सेक्टर इनफैक्ट वो एग्जिस्ट, उसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते ही नहीं, हम उसको बेसिकली हाउस होल्ड बोलते हैं, ठीक है. तो यहां पर इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो था वो तो बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर था. वो जो इन्वेस्ट करेगा वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करेगा. आप उसको ये थोड़ा ना बोल सकते हो कि अच्छा नहीं यार तुम रेलवेज में इन्वेस्ट करते हो क्योंकि हमें रेलवेज बनानी है, ठीक है. सो यू कैन नॉट अज्यूम दैट योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट will be equal. There could be Keynesian friction there. Both are not bound to be equal by necessity. ठीक है, by necessity they cannot be equal. तो ये चीज जो थी, ये Keynesian की जो फ्रिक्शन थी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट,
this was not perhaps identified in this particular model. And again the issue comes that while in the model it did not account for the role of demand, but when we talk about the plan, as I told you, मॉडल जो है वो छोटा पोर्शन है प्लान का. जब हम प्लान के बारे में बात करते हैं तब इट डज टॉक अबाउट द रोल ऑफ डिमांड. कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होगी, स्मॉल स्केल सेक्टर की जरूरत होगी, एग्रीकल्चर की डिमांड की जरूरत होगी. तो इन्होंने यहाँ पर उस बात करी है यहाँ पर मॉडल के अंदर कि एग्रीकल्चर जो होगा वो डिमांड करेगा इंडस्ट्रियल गुड्स. तो यहाँ पर डिमांड के बारे में बात हो रही थी. सो one of the flaws which is identified that it is typically a supply side model with no possibility of a demand constraint. Yes, to a certain extent it's true, but again you have to see the plan to identify that sufficient amount of role was given to the to demand, and demand coming from various other sectors. Let us read through this in terms of our reading. Now if you see this, ये लिखा है ना, Mahalanobis model was exclusively a supply side model. It had no recognition of possibility of demand constraint to capital accumulation, and little scope of slackening of demand growth to subvert the growth process. तो अगर आप सप्लाई करते रहोगे और डिमांड नहीं होगी तो एकदम से आपका ग्रोथ प्रोसेस रुक जाएगा. बट इसके अंदर ये कहीं बात नहीं हुई. This model is based on pure physical relationship between input and output that made sense in the Soviet Union. Classical command economy where investment can be decreed by planners and enforced by commissioners. कि आपने बोल दिया कि इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है. बट इन इंडिया वेयर यू हैव अ यूबिक्विटस प्राइवेट सेक्टर, इन्वेस्टमेंट जो होगी वो प्रॉफिट के रिस्पॉन्स में होगी. अगर मुझे लगेगा कि रेलवेज में प्रॉफिट है तो मैं रेलवेज में इन्वेस्ट करूंगा. अगर मुझे लगेगा कि नहीं फूड इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में प्रॉफिट है, तो मैं रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूंगा. डिमांड इज नाउ अ ल्यूब्रिकेंट. डिमांड इज समथिंग विच यू कैन नॉट फिक्स. इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन वेयर प्रॉफिट एग्जिस्ट. ठीक है. इन अ कमांड इकोनॉमी सरप्लस कैन इजिली बी री इन्वेस्टेड. सपोज मैं गाड़ी का मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सो सपोज 50 करोड़ रुपए का, तो मैं 50 करोड़ रुपए का वो प्रॉफिट अपने पास रख के मैं घर खरीद सकता हूं, मैं कुछ और खरीद सकता हूं. बट इन अ कमांड इकोनॉमी, इन अ टिपिकल यूएसएसआर इकोनॉमी, यू कैन नॉट डू दैट. द गवर्नमेंट कैन से नहीं है जो आपने 50 करोड़ कमाया है प्रॉफिट, इस 50 करोड़ का अब आपको ये करना है, क्या कहते हैं, इसको री इन्वेस्ट करना और आपको और गाड़ियां बनानी है. तो या फिर आपको ये 50 करोड़ रेलवेज में इन्वेस्ट करना है. तो वो जो है वो सेटिंग वहां पॉसिबल है, हमारी जैसी कंट्री के अंदर पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो बट अगेन ये देखो यहाँ जो बता रहा हूँ, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉडल एंड प्लान एज इट वर. द प्लान डिड एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ डिमांड. ये हमने बात करी ना, हम प्लान के ऊपर वो नहीं कर सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते. हम मॉडल के बेस पे प्लान का क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते क्योंकि मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम प्लान ना. एंड ये सारी जो चीजें हैं एग्रीकल्चर की और ये सारी चीजें को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था इन योर एंटायर प्लान. नाउ the next thing was that इस point of time में when we were sitting in 1950s 1960s, तब एक alternative model दिया गया. Remember now guys, अभी जो हम बात कर रहे थे, ये हमने अभी बात करी थी कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स. हमने बात करी थी कि हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन है या तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर ले या कंज्यूमर गुड्स में कर. नेहरू महालनोबिस की जो स्ट्रैटेजी थी वो फेवर इसको करती थी एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड्स. ठीक है. जो ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी थी वो थी वेज गुड स्ट्रैटेजी विच वाज गिवन बाय वाकिल एंड ब्रह्मानंद. नाउ वाकिल एंड ब्रह्मानंद सेड they favored consumer goods industry over capital goods industry. Now what are these goods? हम ये देखते हैं कि ये goods क्या हैं, consumer goods and capital goods क्या हैं. ये तो हमने देख लिया.
हम ये देखते हैं कि इनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या थी. सो दे हैड पोस्टेड एन ऑल्टरनेटिव. ऐसे सिर्फ यही 2 प्लान्स नहीं थे, बहुत सारे और भी प्लान्स थे. ठीक है, व्हेन यू स्टडी इकोनॉमिक हिस्ट्री यू विल नो कि अच्छा हमारा एक गांधीयन प्लान भी था, हमारा एक स्वराज प्लान भी था, एक बॉम्बे प्लान भी था. ठीक है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था. तो बहुत सारे प्लान्स थे, बट the plan that we adopted was the Nehru-Mahalanobis plan or model. One of the major alternatives was this Vakil and Brahmanand's model. Now let us see what Vakil and Brahmanand. Now they said that ये जो Keynesian system है ये इंडिया जैसी कंट्री में वर्क नहीं करेगा, where you are saying that आप बनाते रहो, आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करते रहो, एक्सेस कैपेसिटी पड़ी है तो आप इन्वेस्ट करते रहो, आपका आउटपुट बढ़ता रहेगा. इन्होंने कहा बेसिकली दैट इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो मेजर रीजन है वो इसलिए है क्योंकि इंडिया में डेफिशिएंसी है वेज गुड्स की. इंडिया में लोगों के पास एसेंशली लोगों के पास खाने पीने का, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान, जो एसेंशियल, जब हम वेज गुड्स के बारे में बात करते हैं तो वेज गुड्स का बेसिकली मतलब होता है जिस वेजेस से जो आप गुड्स खरीदते हो सबसे पहले, तो वो सबसे पहले रोटी, कपड़ा और मकान होता है. ठीक है, तो आपके पास लोगों के पास कॉर्न, व्हेन यू से कॉर्न यू बेसिकली मीन फूड एंड क्लोथिंग. लोगों के पास ये चीजें नहीं है. तो ये कहते हैं कि बॉस हमें इंडिया में फोकस कैपिटल गुड्स पे नहीं करना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए इंडिया में इन वेज गुड्स इंडस्ट्रीज पे, विच आर एसेंशियली कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री. हमें ये बनाने चाहिए. ठीक है, और इन्होंने कहा कि हमें प्राइमेसी देनी चाहिए एग्रीकल्चर को, क्योंकि एग्रीकल्चर को प्राइमेसी दोगे तो ये कौन बनेगा, ये फूड बनेगा. ठीक है, एंड क्या कहते हैं, इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को और अंडर एस्टिमेट किया कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. देन नाउ what they said कि आप कैपिटल गुड्स जो हैं, आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर लो. ठीक है, बाय एक्सपोर्टिंग द सरप्लस ऑफ वेज गुड्स. नाउ गाइस, कैन यू आइडेंटिफाई वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दिस स्ट्रैटेजी? ये बेसिकली कह रहे हैं कि आप खाना एक्सपोर्ट कर लो और आप क्लोथ्स एक्सपोर्ट करो, आप एक्सेस में ये दोनों चीजें बनाओ, वेज गुड्स बनाओ, उसको एक्सपोर्ट करके जो पैसा आएगा उससे आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर लो. What is a flaw in this particular strategy? क्या आप ऐसा कर सकते हो? सोचो guys. Not sure, but even for the consumer goods production, you need capital goods production. Exactly. Capital goods. Exactly. One of the reasons is this कि आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे कैसे? अरे आप पुअर कंट्री हो, आपको कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं. ठीक है, मैं कहता हूँ आपको सिंपल वीट उगाना. वीट उगाने के लिए आपको ट्रैक्टर चाहिए, वीट उगाने के लिए आपको क्या कहते हैं कुल्हाड़ी वगैरह, ये सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स चाहिए, स्टोरेज के लिए आपको बिल्डिंग्स चाहिए. देन एक तो ये इशू हो गया. दूसरा इलास्टिसिटी से कंसर्न है. इलास्टिसिटी, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स शुड बी वेज गुड्स? उनकी इनकम इलास्टिसिटी कैसी होगी? हाई इनकम इलास्टिसिटी, लो इनकम इलास्टिसिटी या डिमांड इलास्टिसिटी की बात हो, कैसे होगी? आपके हाई इनकम इलास्टिसिटी या हाई डिमांड इलास्टिसिटी, गाइज जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप इक्वल प्रोपोर्शन से फूड इंक्रीज कर लेते हो क्या? ये सोचो, आपकी पॉकेट मनी आज से 10,000 रुपये 20,000 रुपये हो जाए तो, और आपका खाने का जो बजट है 5,000 रुपये, तो आप उसको 10,000 कर दोगे क्या? तो बिकॉज दीज गुड्स आर इनइलास्टिक इन नेचर, you cannot export, you cannot basically fund your export of products, you cannot fund your import of heavy goods, heavy machineries, जो बहुत ज़्यादा expensive machineries हैं, जो expensive चीज़ें हैं, by exporting these inelastic products. दोनों की इनकम इलास्टिसिटी में जमीन आसमान का फर्क है. ठीक है, सो और ऊपर से दी अदर प्रॉब्लम वाज, आप 50s की बात कर रहे हो, 60s की बात कर रहे हो, पूरा जो यूरोपियन कंट्री, पूरी जो यूरोपियन वर्ल्ड है, दैट इज बेसिकली riddled with problems because of the aftermath of the second world war. देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेज गुड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी.
कैन यू गेस व्हाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर आप बात करो तो बहुत सारा वेज गुड्स चाहिए था. सोचो वॉर से रिलेटेड है, क्यों चाहिए होगा? वॉर में वेज गुड्स क्यों चाहिए होगी? उस टाइम पे 1939 से लेके 1945 तक आपको वेज गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज में. सोचो गाइस, लॉजिक लगाओ, वो कंट्रीज क्या प्रोड्यूस कर रही थी? उन कंट्रीज ने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रखा था? warfare items, equipments and सो यस एग्जैक्टली गाइस, ये सारी कंट्रीज ने अपना सारा का सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल गुड्स और सिंपल वॉर इंडस्ट्रीज में, टैंक्स बना रहे थे, प्लेन्स बना रहे थे, और ये सारी चीजें कर रहे थे. तो बट उनके जो सोल्जर्स हैं उनको क्या चाहिए? उनके सोल्जर्स को एसेंशियली खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, ये तो गुड्स बन नहीं रहे हैं. तो इस पीरियड के अंदर इंडिया हैड एक्चुअली ह्यूज बीओपी सरप्लस vis-a-vis ब्रिटेन. अगर आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ो तो इस पीरियड में इंडिया का बहुत बड़ा बीओपी सरप्लस बन गया था ब्रिटेन के साथ, क्योंकि इंडिया बहुत सारे वेज गुड्स सप्लाई कर रहा था ब्रिटेन को, क्योंकि उसके और मिलिट्री पर्सनल पूरी दुनिया में फैले हुए थे, फाइटिंग द एक्सिस पावर्स. तो एक्सिस अलाइड एंड एक्सिस पावर्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. तो इसलिए उस टाइम पे डिमांड थी वेज गुड्स की. बट पोस्ट वॉर में ये इकोनॉमीज पूरी डिस्ट्रक्ट हो चुकी थी. अब वॉर्स है ही नहीं, अब वो इजीली इन वेज गुड्स बना सकते हैं. तो वेज गुड्स की डिमांड ही पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में कम हो गई थी. तो पहली बात तो आप बेचोगे किसको? हु विल बाय देम? दूसरा, आपकी खुद की कंट्री में तो सफिशिएंट नहीं है वेज गुड्स, आप एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हो. आपके यहाँ खुद पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, खुद अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, तो आप अपनी कंट्री को पहले सेल्फ सफिशिएंट बना लो, बाद में इनको एक्सपोर्ट करना. हमारी कंट्री में खुद तो फेमाइन जैसी सिचुएशन आ रही है, ड्रॉट्स आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करेंगे. इन बेसिकली इन एग्रीकल्चर, इन द नेक्स्ट सेमेस्टर आई विल टीच यू समथिंग अबाउट PL 480. जब इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा था वीट इन अर्ली 80s, इन अर्ली 60s, और टू बेसिकली क्या करा था, यूएस ने अपना एक शिप लेके आया था वीट लेके, और उसने कहा था कि उसने हमारी फॉरेन पॉलिसी को आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करी थी. वी वर अ लिटिल प्रो सोवियत दैट टाइम. तो दे वांटेड कि हम वीट तब एक्सपोर्ट करेंगे जब आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा हमारी तरफ टिल्ट करोगे. एंड बिकॉज वी डिनाइड इट, उन्होंने वो सारा का सारा खाना जो है, सारा फूड ग्रेन जो है, वो इंडियन ओशन में डंप कर दिया और हमें नहीं दिया. ठीक है, दैट वाज द मोमेंट दैट वी रियलाइज दैट बॉस, हम अगर फूड सफिशिएंसी नहीं ला पाएंगे तो हम ऐसे ही खाने के लिए इधर उधर हाथ फैलाते रहेंगे. दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन का पूरा आर्किटेक्चर. ठीक है, दैट वी हैव टू फर्स्ट बी सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड. ठीक है, फिर वो आता है जय जवान जय किसान का मोटो by Lal Bahadur Shastri ji, and then under his tutelage we initiated those green reforms in Haryana and Punjab, and then it was carried forward by Indira Gandhi. ठीक है, तो ये हम सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं थे इस पीरियड के अंदर. एंड दूसरा, कैपिटल इंपोर्ट्स वर नॉट इजी. आप किस कैपिटल गुड्स लोगे किससे? कैपिटल गुड्स वर्ल्ड में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो तो ऑलरेडी खुद ही डिस्ट्रक्टेड थी हिटलर की वजह से. हिटलर ने सारा का सारा वेस्टर्न इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब कर दिया था बॉम्ब करके. तो वो अपने आप को रीबिल्ड कर रहे थे, उनको आयरन एंड स्टील खुद के लिए चाहिए था, वो आपको एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस दिस स्ट्रैटेजी वाज नॉट अ वायबल स्ट्रैटेजी फॉर अस. सो देयरफॉर वी on the basis of all these factors we stuck to our initial जो हमने मॉडल डिस्कस किया, which was the Nehru Mahalanobis model. Let's read it through the reading. इसको वेज गुड सेक्टर का बारे में बोला जाता है ना. द किनीजियन, ये देखो ना, ये कह रहे हैं कि जो किनीजियन प्रॉब्लम, जो किनीजियन का रेलेवेंस है वो इंडिया के लिए वैलिड नहीं है. वो किस लिए वैलिड नहीं है? क्योंकि किनीजियन अनएम्प्लॉयमेंट अज्यूम्स एक्सेस कैपेसिटी. अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है कीन्स में? गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है कीन्स में क्योंकि एएस ऐसा है और एडी ऐसा है. ठीक है, पोटेंशियल आपका यहाँ पर है, आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, आप इतना प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ये इसकी वजह से, इस गैप की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, एंड इंक्लूडिंग स्टॉक्स ऑफ वेज गुड्स एंड अदर सर्कुलेटिंग कैपिटल. वेयर एज इन इंडिया unemployment of labor exists because supply of wage goods to sustain labor as a cooperant factor is inadequate.
तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक्सेस कैपेसिटी नहीं है, इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में लोगों के पास ये वेज गुड्स ही नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है, ये बोल रहे हैं. तो दे सेड दैट वी हैव टू चूज कॉर्न एंड क्लोथिंग, सो वी हैव टू चूज दीज फैक्टर्स एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो फंडामेंटल रहेगा, ठीक है. एंड व्हेन वी अप्रेज दिस दे सीम टू हैव अंडर एस्टिमेटेड, देखो दोनों ने अंडर एस्टिमेशन किया है, ठीक है. जो नेहरू मालेनोबिस स्ट्रैटेजी है उसने कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट किया है और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को फेवर में, एंड जो वकील एंड ब्रह्मानंद की स्ट्रैटेजी है इसने कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री को ओवर एस्टिमेट किया और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट. सो द ऑथर्स ऑफ द प्लान appears to have underestimated the importance of capital goods sector for raising agricultural production, and they said that it could have been imported, ठीक है, in return for wage goods. But the problem is कि हमारा पहले ही sufficient नहीं है तो आप उसको import कैसे करोगे. Then दूसरा चीज जो था ये जो हमने हमारे खुद के लिए sufficient नहीं है, दूसरा availability नहीं है वर्ल्ड मार्केट के अंदर, ठीक है. जो डेवलप कंट्रीज हैं वो अपने आप को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रही है तो वो आपको कहाँ देंगी कैपिटल गुड्स, वो वाली बात आ गई यहाँ पर. देन हाँ, और ये वही जो अंडर एस्टिमेशन और ओवर एस्टिमेशन. सो दिस वाज योर एंटायर, जस्ट रीड थ्रू द पोर्शंस दैट आई हैव मार्क्ड, you will be able to understand. यहाँ तक समझ में आया गाइस, ये दोनों प्लान समझ में आए, दोनों का क्रिटिसिज्म समझ में आया. देन we'll move forward. The next part is अब we know that what kind of model that we have adopted. Now कई बार ये भी एक वो होता है कि आपने एग्रीकल्चर को बॉस इग्नोर किया, ठीक है. तो ये जो इग्नोरिंग का और जो एलिगेशन है हम एग्रीकल्चर के अंदर भी बात करेंगे, बट ये सेम आर्गुमेंट जो है वो आपको उसमें भी प्रेजेंट करना है, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में. सो डू रिमेंबर व्हेन यू आर बेसिकली राइटिंग योर आंसर्स, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये आपका नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर में भी जाएगा. ये पोर्शन जो है नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में भी जाएगा, वहां पर भी आप सेम आर्गुमेंट्स यूज करोगे. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सजेस्ट इन दिस पार्ट इज दैट नेहरू और महालनोबिस ने एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट नहीं किया था. दे अंडरस्टूड दैट एग्रीकल्चर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इवन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वो उसका जो मेजर आउटपुट है वो एग्रीकल्चरल इनपुट्स में जाएगा. एग्रीकल्चर इनपुट्स होंगे तो ग्रोथ का ऑफ एग्रीकल्चर होगा, और ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी. लेट मी एक्सप्लेन हाउ. नाउ आपने इंडस्ट्रियल इनपुट्स बनाए, ट्रैक्टर्स बनाए, आपने कुल्हाड़ी बनाए, आपने सिकल बनाया, आपने बाकी सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, आपने सारे बनाए. ये एग्रीकल्चर इनपुट्स बन गए. ये एग्रीकल्चर इनपुट्स की वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा, और एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा तो यहाँ पर लोगों की, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी, क्रॉपिंग साइज बढ़ेगा. तो अगर इनकम बढ़ेगी तो ये कंज्यूमर गुड्स मांगेंगे, और अगर क्रॉप्स और बढ़ेंगी तो ये कैपिटल गुड्स मांगेंगे. समझ में आया गाइस, ये चीज समझ में आई. एट टाइम्स ये थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो उसकी वजह से उसका जो आउटपुट है वो एग्रीकल्चर इनपुट्स बन जाएंगे. एग्रीकल्चर इनपुट्स बनेंगे तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ ज्यादा होगी. अब ग्रोथ ज्यादा होने का क्या मतलब है, आप दो चीजों में ग्रोथ करोगे. दो चीजें कौन सी में ग्रोथ करोगे, एक लोगों की इनकम बढ़ेगी, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी. तो जब फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी तो वो और कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करना चाहेंगे, तो वो भी तो इंडस्ट्रीज ही देंगे. और जब उनकी ग्रोथ होगा तो उनको लगेगा यार हम और एक्सपैंड करते हैं अपना एग्रीकल्चर. जब आप और गुड्स मांगोगे, इनपुट्स मांगोगे, तो कैपिटल गुड्स मांग रहे हो. पहले आपके पास एक ट्रैक्टर था, आप 2 ट्रैक्टर मांग रहे हो. समझ में आया गाइस, ये लिंक समझ में आया. एंड दिस लिंक वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लान. डू रिमेंबर दिस. The role and the linkage of agriculture and the industry was fermentedly laid down in the plan, if not the model. And as Kane Raj says, that building a strong and a diversified capital goods base was a historic necessity for national and economic security. But even a 4% growth in agriculture is not possible without high growth in industries.
and a 7% growth in industries is not possible without high growth in agriculture. Both the nature of the two sectors, the fate of the two sectors is intertwined, and this fate and then this interlinkage is very well documented in Nehru's speech. However, when we see the planned expenditure, outlay towards agriculture, it was halved into 14% from 28-29% to 14% in the second 5-year plan. ठीक है, ये एक इशू है कि आपने एग्रीकल्चर के ऊपर सेकेंड 5-year प्लान के अंदर जो खर्चा है वो कम. ठीक है, तो probably you can say that there was a lot of intent to promote the agriculture. But if we see in terms of some of the expenditures made and the kind of attention that was given to agriculture, it was perhaps not reflected in the numbers. One of the factors that we see the second 5-year plan. So at least in second 5-year plan, the amount of investment that went into, the amount of expenditure that went into agriculture was not concomitant of the kind of vision that you had. तो आप प्रमोट करना चाहते थे एग्रीकल्चर को, but but it is not reflected in terms of numbers, and that is why we had a crisis in early 60s which was tackled by Lal Bahadur. Let's see this. So यही बात कर रखिए कि 60s के अंदर that Indian agricultural growth was in 1950s was severely constrained because of the availability of basic kinds of industrial inputs. तो the agricultural growth was linked to industrialization. जब तक industrialization नहीं होगी तब तक आप agricultural inputs नहीं बना पाओगे, और agricultural inputs के बिना आप agricultural growth नहीं कर सकते. ठीक है, अब वो जो मैं 4% का लिंकेज बता रहा था, 4% एंड 7% का लिंकेज, वो राज कृष्णा का पूरा कमेंट है यार. नाउ द नेक्स्ट important aspect about the Nehru Mahalanobis plan was how to increase the level of incomes. ठीक है, how to increase the level of incomes. ये एक मेजर कंसर्न था जो हमने बात करी कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या थी. हमारी जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज एसेंशियली ट्रिकल डाउन स्ट्रैटेजी. तो हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ द इंटायर मॉडल ऑन द प्लान वाज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम. हमें बेसिकली ये जीडीपी वाली जो बात है कि हमें इनकम लेवल जो है कंट्री का ये बढ़ाना है, हमें जो इनकम लेवल है कंट्री का ये बढ़ाना है. दिस इज व्हाट वी वांटेड टू इंक्रीज. ठीक है, तो इफ वी वांट टू इंक्रीज दिस, नाउ वी नो दैट वी वांटेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम इन द कंट्री. ना उसके साथ में एक डुअल दूसरा गोल भी था जो हिडन था, कई बार हिडन रहता है. वो होता है कि हमारा साइमल्टेनियसली एम था कि हम बीओपी में डेफिसिट ना ज़्यादा रन करें. ये भी साइमल्टेनियस हमारा एक गोल था जो एट टाइम्स इज मिस्ड. ठीक है, सो रेजिंग द लेवल ऑफ इनकम एज वेल एज परमानेंटली रिलीज इंडिया परमानेंटली फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट्स. नाउ टू इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम हमने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट इन हैवी इंडस्ट्रीज करेंगे. बट अब हम कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए. अब हम इन्वेस्टमेंट अगर हमें चाहिए तो या तो हम फॉरेन रिसोर्स, हमें वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से सोर्स करेंगे. हमें या तो फॉरेन सोर्सेज से करेंगे इन्वेस्टमेंट सोर्स, या तो फॉरेन से सोर्स करेंगे या डोमेस्टिक से सोर्स करेंगे. बट प्रॉब्लम इज दैट वी सेड दैट हम ऑलरेडी 200 साल की सब्जुगेशन में रह चुके थे. तो हमने कहा बॉस हम फॉरेन से सोर्स तो नहीं करेंगे, हम बीओपी में प्रॉब्लम नहीं लेके आएंगे. ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंडिंग है इसको हमने लिमिट करना है. और वही बात हुई, we did not use any major foreign assistance. हमारा foreign assistance का measure जो था वो 5% से ज़्यादा नहीं हुआ. 95% of the investment was sourced through domestic. और उसके अंदर हमने focus किया on contribution of public sector enterprises. तो ये point बहुत important हो जाता है यहाँ पर, contribution of public sector enterprises. Public sector enterprises in the 1950s was seen as a major. So public sector enterprises in the 1950s was seen as a major source of revenue. अब वो revenue क्या था,
हमने बोला कि ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इनको प्रॉफिट कमाना है, जो भी ये प्रॉफिट कमाएंगी इस प्रॉफिट को हम नेशनल यूज के लिए करेंगे, नेशनल रिसोर्सेज में ऐड कर देंगे. So all these public sector enterprises was not imagined to be initially as welfare bodies. तो इनका ये काम नहीं था कि सस्ते रेट पे सबको बेचो, इनका काम था कि आप सर्विसेज बेचो, आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करो, सरप्लस जनरेट करो और इस सरप्लस से फिर नेशन को बिल्ड करने की हेल्प करो. सो दिस वाज द इनिशियल गोल ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. और वो पैसा बेसिकली इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से सरकार के पास जाएगा और उसी को हम बोलते हैं इन इंडिया, कहीं वर्ड मिलेगा नहीं आपकी रीडिंग्स में, IEBR, इंटरनल एंड एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज. डू रिमेंबर दिस थिंग गाइज. ये मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये आपको बाद में कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा, हेल्प यू लेटर ऑन. दैट जो आपकी फाइनेंसिंग होती है बजट की, फाइनेंसिंग ऑफ या कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो दो सोर्सेस से आता है. एक होता है ग्रॉस बजटरी सपोर्ट और दूसरा होता है IEBR. जो बजट से पैसा आ रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस बजटरी सपोर्ट. और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो सेविंग्स है, PSUs, PSBs की जो सेविंग्स है, जो आप फंड करते हो उसको हम बोलते हैं IE. तो जो रोल था आपका, जो आपका रोल था एंटरप्राइजेस का, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, वो इतना बड़ा था कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उनको कि बॉस आपको नेशन बिल्डिंग में हेल्प करनी है और आपको इंश्योर करना है कि आप प्रॉफिट कमाओ और ये सरप्लस जो सरकार को ट्रांसफर करो सो दैट सरकार उससे और चीजें खोल पाए, और स्कूल्स, कॉलेजेस, जो भी उसको सरकार को खोलना है वो कर पाए. ठीक है, तो ये आपका इनिशियल गोल था विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक सेक्टर. एंड वी वांटेड टू बी अ सेल्फ सफिशिएंट कंट्री. वी डिड नॉट वांट दैट वी शुड रिलाई ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. नाउ लेवल ऑफ इनकम जो है उनको इंक्रीज करना, इट इज वेरी वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एरा. व्हाट वाज आल्सो देयर was to release India permanently from the balance of payment. Now, to increase the rapid level of income, it was to be brought about by huge investment in heavy industries. ये हम already देख चुके हैं. Now, अब आपकी heavy industries तो ज़्यादा थी, तो आप उसको fund कैसे करोगे? तो उसको फंड करने का तरीका, फर्स्ट नो मेजर फॉरेन असिस्टेंस वाज इन्वेस्टेड. ठीक है, आपको इंडिपेंडेंट रहना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए. फॉरेन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया, फॉरेन असिस्टेंस वाज पुट डाउन टू लेस देन 5% ऑफ टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द प्लान. नाउ यहाँ पर आ जाती है बात पुटिंग योर पब्लिक सेक्टर ऑन एट द कमांडिंग हाइट्स. क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का काम था प्रॉफिट बना के आपके प्लान्स को फंड करना. इसीलिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का रोल जो है इकोनॉमी में बहुत बड़ा, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया और उनका ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल हो गया. इसीलिए उनको बोलते हैं दैट फ्रॉम 1950s onwards, फ्रॉम नेहरू मालनोबिस प्लान onwards, these public sector enterprises were put at commanding heights of the economy because they were to contribute towards nation building through IEBR. Basically meaning that from the profits that they will generate, from the excess surplus that they will generate, that will be transferred to the government, and through that profits basically the government will fund its overall plan and projects. So the envisaged contribution of the public sector enterprises was significant, revealing that Indian states understanding their role in the Indian economy. The item additional taxes, loans and profit from state enterprises along with contribution of railways together equaled loans from public and were twice what was taken as foreign assistance. इतना बड़ा contribution था. So the central premise of public policy in 1950s was public sector was expected to contribute resources to the larger project of, जिसको हम IEBR भी बोलते. समझ में आया गाइस IEBR का कंसेप्ट एंड द रोल दैट वाज एनविसेज्ड. इससे आपको ये भी आइडिया लग रहा है कि पब्लिक सेक्टर का वेलफेयर का गोल नहीं था. अभी हम बाद में और बात करेंगे पब्लिक सेक्टर और एग्रीकल्चर के बारे में, तो डिटेल में और बात करें. ठीक है, और वो ब्लैक होल्स इमेजिन नहीं किए गए थे बट वो अल्टीमेटली बन गए थे बाद में ब्लैक होल्स, वो हम बाद में बात करेंगे. बट
you should be clear what was the objective with which public sector was envisaged. यहाँ तक clear है guys? Public sector का role समझ में आया? What was the entire philosophy behind Nehru Mahalanobis? उसके बाद गाइज ये नेहरू की स्पीचेस हैं, ये नेहरू की सारी स्पीचेस बेसिकली वही बता रही हैं कि एग्रीकल्चर का रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम एग्रीकल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं. जो हम बेसिकली बोलते हैं ना कि एलिगेशन आएगा, जो बाद में एलिगेशन आएगा कि नेहरू ने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया, तो इन टर्म्स ऑफ हिज इंटेंट यू कैन नॉट फॉल्ट दिस पर्टिकुलर पीरियड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि नेहरू इन मल्टीपल स्पीचेस had mentioned, in fact to the point that he mentioned that agriculture is much more important than industrial growth. ठीक है, तो वो सारी speeches हैं. I've highlighted those speeches which you need to go through. Just read them, and all of them basically say the same thing, that we need to pay equal if not more importance to the agrarian sector. ये सारी speeches में वही चीज़. Then the part comes कि now we need to see कि बॉस बातें तो बहुत हो गई कि अच्छा नेहरू ने ये सोचा था, महालनोबिस ने ये सोचा था, ऑल्टरनेटिव प्लान ये था, ये उनकी स्पीचेस थी, ये उनकी इंटेंशन थी, हमने ये सारी बातें करी अभी तक. नाउ वी नीड टू सी, वी नीड टू पुट द मनी वेयर देयर माउथ इज. ठीक है, वी नीड टू सी कि बॉस आपने अचीव क्या किया, हम ये देखना चाहते हैं. ठीक है, उसके लिए हम उनका ग्रोथ जो है वो देखना चाहते हैं कि अच्छा इनके पीरियड में ग्रोथ कितनी हुई है. Putting things into perspective with numbers. That is what are we going to do. Now if we see that हम basically growth को किस तरीके से पुट करेंगे, इसका टाइटल गलत है गाइस, इसका टाइटल होना चाहिए था putting growth in perspective. Now if we put growth in perspective we see two things. Now अब वो growth को किस तरीके से कंपेयर करोगे गाइस? ग्रोथ को कंपेयर करने के लिए अगर आपको कंपेयर करना है कि हमारी ग्रोथ ठीक थी या ग्रोथ ठीक नहीं थी, तो हमें बेसिकली उसको कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू कि हमारी ग्रोथ पहले क्या थी और अब क्या है. हम क्या कंपेयर करेंगे? इंटर टेम्पोरल ग्रोथ कंपेयर करेंगे कि हमारी ग्रोथ बॉस 1950 से 1964 के पहले क्या थी, और हम कंपेयर करेंगे कि अच्छा हमारी ग्रोथ एज कंपेयर टू हमारी जो कंटेम्पररी कंट्रीज हैं, और वो कंट्रीज जो हमारे वैसे पीरियड पे चल रही थी, जिनका अर्ली टाइम्स ऑफ वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उन्होंने कितना ग्रो किया, तो हम उससे कंपेयर करेंगे. तो हम अपने आप को पहले कंपेयर करते हैं 1900 टू 1946, जो राज वाला एरा है, ब्रिटिश राज वाला जो एरा है, उससे कंपेयर करते हैं. और उससे कंपेयर करते हैं तो हमें देखते हैं यार एग्रीकल्चर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है, इंडस्ट्री सर्विस ये सेकेंडरी सेक्टर में तो बहुत ही एक्सेलेंट ग्रोथ है, और ये ग्रोथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी फोकस ही हमारा इंडस्ट्रीज पे था, और टर्शरी सेक्टर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ है. इनफैक्ट जीडीपी का ग्रोथ यहाँ 1% था इन 40-45 सालों में, और यहाँ पर 4% है, और पर कैपिटा ग्रोथ भी बहुत अच्छा है. ठीक है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉपुलेशन का ग्रोथ देखो, पॉपुलेशन का ग्रोथ 2% से पॉपुलेशन का ग्रोथ 2% से इंक्रीज हुआ है, वेयरएज यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी तेजी से ग्रो नहीं कर रही थी. तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, आपका जीडीपी पर कैपिटा काफी तेजी से इंक्रीज किया, और ओवरऑल जो है जीडीपी भी बहुत तेजी से. ठीक है, सो ये जो ग्रोथ थी we can see quantitatively that this growth was different. And if we draw parallels from industrial revolution, तो हमें ये भी पता चलता है कि अगर इवन इफ आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा ना हो, बट आपने फोकस इंडस्ट्रीज पे किया हो, तो वो जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ है दैट विल बी मच बेटर. तो क्वांटिटेटिवली तो हमारी दिख ही रही है कि क्वांटिटेटिवली ग्रोथ बेटर है, क्वांटिटेटिवली वी सी दैट द ग्रोथ इज मच बेटर, बट क्वालिटेटिवली भी बेटर है, क्योंकि यहां पर आपने एक इंडस्ट्रियल बेस सेटअप कर दिया है जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज में, जो यूएस, यूके, जापान, इन सब में भी इनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे हुआ था कि उनकी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ गई थी, बट जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी. सो बट हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव ग्रोथ दोनों इंक्रीज हुआ. एंड इफ वी कंपेयर आवरसेल्फ टू आवर कंटेम्पररी कंट्रीज, तो हमें दिखता है कि हम चाइना से भी ज्यादा अच्छा ग्रो कर रहे थे इस पीरियड के अंदर, और थोड़ा बस कोरिया से थोड़ा सा नीचे थे.
So we were doing well in terms of comparison to our contemporary countries as well. And ये जो comparison है 1820 से लेके 1992 तक का, ये basically comparison है ये कि long run के अंदर इन countries ने कितना grow किया जो already developed है. तो हम basically वो path ले चुके थे कि हम अगर इसी path पे grow करते रहें और qualitatively add करते रहें तो we are going to eventually catch up with these particular nations as well. तो this was just the starting point of that catch up. जो आपने catch up probably conditional convergence and unconditional convergence में भी पढ़ा होगा macroeconomics. ठीक है, तो we had started our path towards this convergence. At least we had started that path. तो हम उसके बारे में बात करें. Let's go through this in the reading as well. तो ये हमने ये दो चीज़ें बात करी कि हम अपने अंदर भी ग्रोथ की बात करेंगे और कंटेम्परेरी कंट्रीज से भी बात करेंगे. और we say that we achieved a higher growth rate than what was achieved in the colonial period as well. And if we draw parallels to industrial revolution, we see that ये चीज़ जो मैं दिखाना चाह रहा था, that there is a qualitative difference in the economy in which GDP per capita grows at 1.5% and in which it grows at 0.2%. तो क्योंकि अब जो ग्रोथ है उसके अंदर टेक्नोलॉजी इनबिल्ट आ गई है. पहले टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी भी इनबिल्ट आ गई है. अब वाइडर बेस, अब इंडस्ट्रियल बेस है, तो उसकी क्वालिटी भी डिफरेंट हो चुकी है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज मेंशन्ड हियर. एंड ये टेबल आई हैव ऑलरेडी शोन यू, ये टेबल बनाया हुआ है और ये वाला टेबल जो है ये भी उसके अंदर नोट्स के अंदर. और ये बेसिकली ग्रोथ पाथ के बारे में बता रहे हैं. दैट वी हैव चोजन टू सेट्स ऑफ इकोनॉमीज. एक फर्स्ट सेट एशियन इकोनॉमीज जिनका वी आर मोर और लेस विद पार विद द कंट्रीज. ठीक, तो हमारा बेसिक कंपैरिजन सिमिलर ही है. ठीक है, चाइना कोरिया से थोड़ा सा कम है, चाइना से थोड़ा सा ज़्यादा है. एंड चाइना ने जो मेजर वो लिया, पॉलिसीज ली, जो चाइना ने जो मेजर जंप लिया वो मिड 1970s में लिया. ठीक है, जब उन्होंने डेंग जियोपिंग की पॉलिसीज फॉलो करी इन 1978. तो टिल 1978 इफ वी सी compare India to China, तो India का growth rate was perhaps more and India was perhaps more developed as compared to China. But from 1978 onwards, under the reforms launched by Deng Xiaoping, ठीक है, उसके बाद डाइवर्जेंस आना शुरू हुआ. वो इकोनॉमी 10% से ग्रो करनी शुरू हो गई अगले 30 साल. whereas we were struggling till 1991 और उसके बाद भी लिंगर ऑन करके 2003 के बाद से हमने थोड़ा सा ग्रोथ शुरू किया तेजी से. ठीक है, तो दैट वाज द इशू. और वो फिर बाकी जो कंपैरिजन है वो जो मैंने अभी आपको बताया कि कंपैरिजन ऑफ इंडिया विद ऑल दीज कंट्रीज, यूएस, यूके, जापान, ओईसीडी कंट्रीज के साथ में. नाउ what remains and what we will cover in the next two classes is जो 3 मेजर एलिगेशंस लगते हैं. 3 मेजर एलिगेशंस के बारे में हम बात करेंगे. वो 3 मेजर एलिगेशंस क्या हैं वो देख लेते हैं बस. द कॉमन मिसकंसेप्शंस अबाउट द नेहरूवियन एरा. एक मिसकंसेप्शन है, एक जो मेजर मिसकंसेप्शन रहता है वो है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि एग्रीकल्चर को क्या नेहरू एंड मालिनोबिस की उसके अंदर निग्लेक्ट किया गया था. सो द फर्स्ट थिंग वी विल सी इज निग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सही में एग्रीकल्चर को निग्लेक्ट किया गया था इन नेहरू एंड मालिनोबिस प्लान और वर्सेस स्ट्रैटेजी. और प्लान के अंदर तो हम वी विल सी कि ये नहीं किया गया था. देन द लेगेसी ऑफ PSUs, ये जैसे BSNL की वो पिक्चर है, PSUs एज ब्लैक होल एंड फेलियर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, निग्लेक्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन. इसमें हम क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि यहाँ पर वी सी दैट देयर वाज इंडीड अ वेरी लो अमाउंट ऑफ मनी दैट वाज एलोकेटेड टू द प्राइमरी एजुकेशन एंड द एजुकेशन सेक्टर पर से. तो ये 3 एलिगेशंस को हम आर्ग्यू आउट करेंगे एंड इन दोनों में हम डिफेंड करेंगे नेहरू मालिनोबिस को और नेहरू
को in general, and इसमें हम we will not be able to defend much. So tomorrow's class we will be able to perhaps finish this reading, or maybe on Friday's class, and then we will start with our next.